RS nomenclature. RS nomenclature, right? इसमें CIP rules first. CIP rules. Rule number 1. Give the priority to higher atomic number. To higher atomic number. To higher atomic number. Okay. Then next, if same atoms are there, same atoms are there, take next atoms, to give priority, Next, third one. If multiple bonds are there, consider those many times atom connected to a particular atom. इसका थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा. सपोज कोई C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन इज देयर, C double bond O CH3 is there, then C double bond O oxygen OH is there. ठीक है, नहीं तो C triple bond N is there. ठीक है, थर्ड वन C triple bond is there, N is there. then क्या करना है, पहले you have to understand like this carbon is connected 2 times with oxygen, 1 time with carbon. Okay, this carbon is 2 times with oxygen and 1 more time with oxygen. This carbon is connected with 3 times nitrogen. Suppose 3 times वो भी same हो गया. Again you have to consider ये nitrogen connected with again 3 times carbon. First thing is carbon connected 3 times nitrogen. Again each nitrogen connected with carbon. Here also same. Here these oxygens again connected with carbon. These oxygen connected with carbon. ये oxygen connected with hydrogen. Okay, here 2 oxygens connected with again carbon. ये ऐसा. Okay, इतना difficult तो नहीं होगा. Easily we can identify. फिर भी you have to know that. After that, fourth, make sure, fourth preference group, na? Right. Fourth point, make sure that fourth preference group should be in vertical line or away from the viewer, away from us, or away from
व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर। देखो फिशर प्रोजेक्शन लिखे तो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, 3 डायमेंशनल डैश एंड वेज फार्मूला है तो डैश में होना चाहिए। ओके, फोर्थ प्रेफरेंस ग्रुप एग्जांपल आई एम गिविंग हियर हाइड्रो OH Cl CHO हाइड्रोजन, फोर्थ प्रेफरेंस ग्रुप वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, लीस्ट तो ये है। नेक्स्ट दूसरा ऐसा एक कार्बन है तो डॉटेड डॉटेड में हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट थिक लाइन में कुछ भी हो CH3 नहीं तो COOH, दूसरा Cl कुछ। Fourth preference group either should be in a dotted line, that means away from us. Fisher projection में है तो vertical line में होना चाहिए। Then fifth point, join the 1, 2, 3 priority carbons. Priority carbon. Join the 1, 2, 3 priority carbon. If it shows clockwise, give R nomenclature. Give R. If it shows anti-clockwise, give S nomenclature. Give S. Okay? Understood? Once again I am repeating, according to atomic number priority देना है। Second, same atoms है तो next atom देखना है। Third, multiple atom है तो like this. Okay, priority तो हो गया। After giving the priority, what to do? Just here a condition था, fourth preference group should be in the vertical. Fourth preference, least preference या fourth preference. वर्टिकल लाइन में ये डैश एंड वेज में है तो डैश में होना चाहिए, अवे फ्रॉम अस। नेक्स्ट क्या करना है, बस 1 2 3 ज्वाइन करो। सी आई एम डूइंग हियर ज्वाइनिंग दिस, ये तो आई एम गिविंग हियर नंबर 1। ठीक है, कैसे देखो सेंट्रल कार्बन था, ऑक्सीजन कार्बन, अच्छा ये तो 1 नहीं होगा, क्लोरीन को नंबर 1 देना पड़ेगा। क्लोरीन नंबर 1, oxygen number 2, here carbon is there number 3, hydrogen is there number 4। then next point क्या बोल रहे हैं, नंबर तो दे दिया, make sure that fourth group vertical। ठीक है, डन। join the 1 2 3, join 1 2 3 like this। ये कैसे दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज है, इसका नाम क्या देना है, R। नेक्स्ट here chlorine number 1, COOH number 2, CH3 number 3, ये तो नंबर 4। ओके राइट, नंबर 1 2 3 देना है, 1 2 3 1 2 3 ज्वाइन करो। ठीक है, देन हाउ इट लुक लाइक 1 2 3, ये तो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, सो क्लॉकवाइज मतलब वही तो ये भी R। ओके, अंडरस्टूड? अरे ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, यस एंटी क्लॉकवाइज, ये पहले वाला तो क्लॉकवाइज है ना, R। हेलो, ये पॉइंट समझ गए यार? नेक्स्ट वी विल टेक सम एग्जांपल्स। यस सर, राइट। फिफ्थ पॉइंट ओवर ना, नाउ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करो, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज इफ, वो जरूरत नहीं फोर्थ पॉइंट वर्टिकल में होगा, सपोज नहीं हुआ, देन क्या करना है, इफ लीस्ट प्रेफरेंस ग्रुप, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप
if least priority group is not in vertical, then exchange the groups even number of times, बस इतना इनफ है. ओके, चलो एग्जाम्पल. HOH COOH CH3. ठीक है, this one. Next one I am taking, so hydrogen CH3 OH COOH. मैं इधर क्या किया, ठीक है, इधर कैलकुलेट करेंगे पहले. चलो, गिविंग नंबर 1 2 3, 1 2 3, इधर 4. ठीक है, फोर्थ प्रेफरेंस ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल चाहिए मेरे को. देन व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये तो एक्सचेंज कर रहा है एक बार, इधर भी एक्सचेंज कर रहा मैं सेकंड टाइम. ठीक है, इधर बाद में. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, देखो OH here, COOH here, CH3 here, hydrogen here, even number of times हो गए. Right, now again give the numbering. ये तो number 1 2 3, 1 2 3, so like this. Right, ये कैसे दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज मतलब R. ठीक है, सपोज इफ यू डोंट डू दैट, ये कैसे आएंगे चेक करते हैं एक बार. OH 1 2 3, तो सीधा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. ओके, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब देखो एक मैं शॉर्टकट निकाल सकते हैं इधर से. रूल के हिसाब से तो ऐसा करना है काम. ठीक है, मैं विदाउट डूइंग दिस व्हाट कैन आई डू, व्हेनेवर हॉरिजॉन्टल, ये हाइड्रोजन वर्टिकल में है तो क्लॉकवाइज का R, एंटी क्लॉकवाइज का S. सपोज हॉरिजॉन्टल में है, ओके, नाउ ये हॉरिजॉन्टल में हाइड्रोजन, इन दिस केस क्लॉकवाइज इज कॉल्ड S, एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड R. ऐसा दे सकते, एक शॉर्टकट मेथड है. ठीक है, ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फॉलो द रूल्स. मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सचेंज किया, आंसर तो आ गया. ये दोनों में क्या डिफरेंस था, ये हाइड्रोजन था हॉरिजॉन्टल में, है तो आंसर क्या आ रहा है, ऑब्वियसली ऑपोजिट आंसर होगा. ओके, दैट्स व्हाई इफ यू नोट डाउन एंड इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, इट्स ओके फाइन. सर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, प्रॉपर रूल के हिसाब से जाओ. फोर्थ प्रेफरेंस ग्रुप वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, सो यू मेक इट. कैसे करना है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स ग्रुप्स को चेंज कर सकते. देन वो आंसर क्या है, क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S. ओके, गॉट इट. अभी RS नॉमेनक्लेचर के लिए
Okay, I will give some examples. You identify that which is the RS examples. HCl OH CH3. Number 1, 2, HOH H OH CH3 C2H5. Third one, HOH HOH methyl methyl. Yes, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ. This one. 1, 2, 3. 1, 2, 3. क्या दिख रहा है ऐसा? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं. लेकिन हाइड्रोजन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या चाहिए था? वर्टिकल लाइन में. सो आंसर क्या होगा? सी लुकिंग लाइक एस but hydrogen is vertical line, so answer will be R. Answer is R. Shivani, answer is R. Numbering 1, 2, 3, 4 and 5. Now tell me second carbon and third carbon. 1 first preference. देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन है. This carbon attached to hydrogen, this carbon attached to carbon. So second preference इधर देना है. ठीक है. So first preference, second preference, third preference, fourth preference. ठीक है. Now 1, 2, 3. ये तो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो हॉरिजॉन्टल में है. So clockwise opposite आंसर, मतलब S is आंसर. राइट. नीचे ये 1 है, ऊपर तो कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, लेकिन दिस कार्बन कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, दिस कार्बन कनेक्टेड विद वन मोर कार्बन ओनली. सो इसको ज्यादा प्रेफरेंस है. सो 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज जैसा है, लेकिन हाइड्रोजन तो हॉरिजॉन्टल है. एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस है, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल, इसलिए आर इज आंसर. हेलो, डाउट है तो पूछना. आई विल राइट वही स्ट्रक्चर 2 बार लिख के एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. राइट. तो सेम है. 1, 2, 3. 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जैसा दिख रहे हैं, मतलब एस इज आंसर. ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर इज आंसर. ओके. राइट. चलो एक बार एनांटियोमर्स का देखते कैसे होता है एनांटियोमर्स. और दूसरा चीज ये है, देखो सेकंड कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? द सेकंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्यों? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर. द थर्ड वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सर ये मैं आज सर इधर भी तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इधर मिथाइल है, इथाइल है, वो दोनों का रोटेशन सेम नहीं हो सकता है. एक को ज्यादा होगा, एक को कम होगा. दैट्स व्हाई फाइनली इट्स नॉट गेट कैंसल. ठीक है. एक मिरर इमेज देखते हैं. H
BR BR इसका मिरर इमेज BRH नीचे CH3 ऊपर CHO, राइट। ये तो मिरर इमेज है, राइट। प्लेनर सिमेट्री इज देयर, ऐसा प्लेन तो नहीं है। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा एनांशियोमर्स, दीज आर एनांशियोमर्स, राइट। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ब्रोमीन से शुरू करना है। ब्रोमीन फर्स्ट प्रेफरेंस, देखो कार्बन है, कार्बन कनेक्टेड विद ब्रोमीन, कार्बन कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, तो ब्रोमीन को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। सर इधर 2 बार ऑक्सीजन है, वो सम करना नहीं, सम करने की जरूरत नहीं, ओके। हियर देखो दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद ब्रोमीन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये नीचे वाला। ऊपर वाला कार्बन कनेक्टेड विद 2 टाइम्स ऑक्सीजन एंड 1 टाइम हाइड्रोजन। बस इतना ही देखना है, ब्रोमीन है मतलब बस इतना ही। सर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऐसा ऐड करना, नो नीड, नो एडिशंस। इस केस में एडिशन करे तो भी उतना है, कोई बात नहीं। चलो सेकंड प्रेफरेंस तो डाउन देना पड़ेगा, ऊपर थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस तो इधर 1 2 3, व्हाट इट इज लुकिंग लाइक क्लॉकवाइज, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि H इज द ऑरिजिन। नेक्स्ट ब्रोमीन ऊपर वाला जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हाइड्रोजन तो हॉरिजॉन्टल है इसलिए R। इधर तो मैं सीधा लिखता हूं 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस R, the 1 2 3 क्लॉकवाइज, लेकिन SR RS, ये तो मिरर इमेज, ये रेसिप्रोकल पिक्चर मतलब वही, ओके। ऑपोजिट गेट कैंसल। SR का मिरर इमेज RS होता है, RR का मिरर इमेज SS होता है, ओके, राइट। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स में एक दो दूसरा है एग्जांपल्स, ये तो हो गया कन्फर्मेशन आइसोमर में। टुमारो आई विल स्टार्ट हैलो अल्केन्स। एक तो मिथाइल, इधर भी है, इधर भी मिथाइल है, ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल। नाउ सिस एंड ट्रांस, which is more stable? One is cis, one is trans. Which is more stable? ये दोनों cis है, the trans. Which is more stable? You try it, then I will explain. You noted down this over. नेक्स्ट अगेन 1,3 पोजीशन में सिस, 1,3 पोजीशन में ट्रांस। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1,4 पोजीशन सिस एंड ट्रांस। Yes, stability लिखना है। One trans is more stable, पूजा, trans is more stable, okay। देखते कैसे देखना है, देखो इसका ये फॉर्म में लिखना है, चेयर फॉर्म में लिखना है। देखो सिस मतलब दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड, हमको दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ऊपर CH3, दोनों ऊपर CH3 भी लिख सकते, नहीं तो
दोनों नीचे भी लिख सकते हैं, CH3 CH3। सिस मतलब सेम साइड होता है, ट्रांस मतलब ऑपोजिट। एक तो मैं ऊपर CH3 नीचे CH3 लिख सकते, नहीं तो एक नीचे एक तो ऊपर, ऐसा भी लिख सकते। देखो अभी स्टेबलेस्ट क्या है, ये तो एक्सियल, ये तो इक्वेटोरियल। एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ओके, सो 1 2 3 4 में विच इज द मोर स्टेबल? फोर्थ इज सबसे मोस्ट स्टेबल, स्टेबलेस्ट फोर्थ। उसके बाद एक्सियल एक्सियल सेकंड तो सबसे लीस्ट। ओके, देन 1 and 3 सेम, 1 equal to 3। देखो स्टेबल का किसमें आया था? ट्रांस में आया था, सो ट्रांस इज मोर स्टेबल। फाइनल आंसर इज फोर्थ इज ट्रांस इज मोर स्टेबल। सिस तो अनस्टेबल। सर सेकंड अनस्टेबल वाला ट्रांस में भी है, लेकिन जरूरत नहीं है। व्हाई शुड आई टेक दिस वन? आई विल टेक दिस वन व्हिच इज मोर स्टेबल, वही लेना है। ओके ओके, ट्रांस में टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक तो सबसे अनस्टेबल भी हो सकता है, सबसे स्टेबल भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली स्टेबल वाला ले सकते हैं। ओके राइट, सो आंसर इज ट्रांस। ओके परफेक्ट। अभी ट्रांस में विच इज स्टेबल? बोथ आर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ओके, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल। चलो लाइक दैट। टेल मी सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में 1 इक्वेटोरियल, थर्ड में भी इक्वेटोरियल। ओके नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर में एक तो इक्वेटोरियल लिखना चाहता हूं, लेकिन ट्रांस बोल रहे हैं, ट्रांस बोले तो इक्वेटोरियल, तो दूसरा तो एक्सियल होना ही चाहिए। राइट, ये तो एक्सियल लिख दिया। राइट, ये तो इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये बोथ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। नाउ व्हिच इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ 2? हेलो, Pooja understood, but what about Purva, Shivani and others? आदित्य तो आंसर देते नहीं कभी, है क्या नहीं क्लास में? सार्थक, समीक्षा, अनुष, अथर। ओके यू आर देयर अथर। टेल मी बेटा, सेकंड में विच इज मोर स्टेबल होगा अभी? यस यस यू आर, यस नहीं है, अभी आंसर चाहिए। सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आंसर, वी हैव ओनली 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। सेकंड में पूर्वा, आर यू हियर? इन द सेकंड व्हिच इज मोर स्टेबल? मैं तो सब कुछ तो लिखा है बोर्ड पे। हाँ ओनली पूजा इज गिविंग आंसर, बट व्हाट अबाउट अदर्स? पूर्वा, आर यू अंडरस्टूड और नॉट? देखो आंसर बोल रहे हैं, दोनों इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल कभी भी स्टेबल होता है एक्सियल से। राइट, इक्वेटोरियल, दोनों में इक्वेटोरियल इसलिए स्टेबल। सिस इज मोर स्टेबल। उस टाइम में ट्रांस था, अभी तो सिस है। चलो फोर्थ वाला, थर्ड क्वेश्चन में बताओ। थर्ड क्वेश्चन, ये 1 4 है, 1 2 3 4 इक्वेटोरियल, ये भी डाउन, ये भी डाउन लिखा था। ठीक है, इधर एक तो डाउन लिखता हूं मैं, दूसरा फोर्थ पोजीशन में डिफरेंट लिखना है, डिफरेंट मतलब अप। नाउ टेल मी व्हिच इज मोर स्टेबल? इधर सिस है, ये ट्रांस है, व्हिच इज मोर स्टेबल? थर्ड क्वेश्चन। सी आंसर देते तो मेरे को समझता है, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। सार्थक गिव एन आंसर, ट्रांस इज मोर स्टेबल।
यस ट्रांस। देखो कैसे ट्रांस टेबल, या ये तो इक्वेटोरियल है, ये भी तो इक्वेटोरियल है। डाउन डाउन है तो एक्सियल, ओके। अप डाउन है तो इक्वेटोरियल, डाउन अप है तो इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल हो गया। ये अप वाला ये तो इक्वेटोरियल है, लेकिन ये तो एक्सियल है। So less stable, it is more stable. So finally, trans is more stable. Okay. So stereoisomerism maximum completed. देखो questions तो raise होता है ये doubts, but you have to solve the questions. Then only it will be clear. Next exam ये प्री बोर्ड के मतलब ये ग्रैंड टेस्ट के बाद तुम्हारा टेस्ट होगा stereoisomerism as well hydrocarbons, GOC. Okay, right. I sent you the PDF, many questions are there, you solve it. If you want ask me some more questions, I will give. Okay, okay, bye, all the best, have a good day. Solve the questions, don't waste time.